But in case of breast cancer, there are multiple factors like hormonal, environmental, and genetic factors that can play an important role in causing breast cancer. Next, please. Few of them we cannot change, and there are few which can be modified. Like non-modifiable factors are gender. Definitely, I can see so many beautiful girls. I think nobody wants to change their gender. Am I right? So, we are in the advancing age. We cannot stop it. If अगर रोक सकते हो तो शायद हम सब कहेंगे हम young रह जाएं, but we have to grow older. Genetic factors, it comes in the family. At times there are few genes. We cannot change their genes. We cannot change their genetic makeup. And if somebody has a personal history of breast cancer or a history of radiation in the past or in the childhood or too much exposure of hormones like estrogen or stuff like that. Next, please. What we can change is we can modify our lifestyle. It should be healthy lifestyle. We should go for regular walk and exercise. We should reduce weight, and the sleep pattern should be good. Though everybody's life is full of stress, but we can decrease it a little bit because stress is not the answer of everything. So, how to prevent cancer? As we have already discussed, that we can modify our lifestyle, and there are few factors like, and if you see anything in your breast, so you should go immediately to the concerned person, to the concerned doctor, so that we can diagnose it on the early stage. I am working since 2005. Now I am looking at very younger patients. Most important here is that as compared to Western countries, we are looking at young patients here, 10 years younger than those which we see in the Western countries. Like you go in the washroom or in your private room, you stand in front of the mirror with different positions, but you should not leave any part of the breast. So everything should be examined properly, and in case you find anything, any small thing, I tell you what we have to look for. But if you see anything, you just go to the concerned surgeon, right? More than 90% of the left breast lumps can be due to any other reason, right? And they are mostly benign. They can be due to any other reason. But the concern is that the 10% is our concern, right? Ultrasound breast in younger age group. And another important thing, if the patient is younger than 40 years of age, they should have an ultrasound. And those who are older, like more than 40 years, they should have a mammogram. Ultrasound can fix so many things, so it's a very good to have. Those who have a strong family history, they have a concern, so they can go for genetic screening. This is BRCA1 and 2 gene. It's possible and it's done now in Pakistan. A bit costly, but it can be done. Right. There are myths. I won't go in the detail of the myths क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं जिसमें से मेन प्रॉब्लम जो मेरे बच्चे अभी डिस्कस कर आपको दिखाएंगे कि जी सुई नहीं लगवानी, लोहा नहीं लगवाना, ब्लैक अंडरगारमेंट पहना उससे कुछ हो जाएगा, डिओड्रेंट से कुछ हो जाएगा, या मेरी फैमिली में है तो मुझे जरूर हो जाएगा. तो फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर हम 100% देखें 75% वो लोग होंगे जिनकी फैमिली में कैंसर नहीं है बट दे हैव ब्रेस्ट कैंसर. दिस इज द साउंड एंड दिस पेशेंट प्रेजेंटेड हियर. So, like, I think we need to work a lot on it. But this is a patient who came with early breast cancer. This is another patient. So, there are different things like if we detect the things earlier, the results is better. There is no need that और ये stress लेने की ज़रूरत नहीं है कि breast remove हो जाएगी, treatment छोटा है और उसमें जो cure की है हम 100% cure की तरफ जा सकते हैं. Be humble with them. Be sympathetic with them because they need continuous support. And it's a fight, and we should all work together against this fight and go beyond. Thank you very much. अगर कैंसर से बचना कैसे है, तो अभी इम्प्लीमेंटेबल खवातीन क्या कर सकती हैं, तो उसमें सबसे अहम ये है कि डाइट आती है. डाइट में एक चीज़ बोला जाता है मेडिटेरेनियन डाइट. ठीक है, इस मेडिटेरेनियन डाइट में जिसको आप आज की ज़ुबान में कह लें कि एक हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, ये डाइट शामिल होती है. फिर उसके बाद ओवरवेट नहीं होना. फैट में एस्ट्रोजन्स बनते हैं और ये फिर रिस्क को बढ़ाते हैं, तो वेट को कंट्रोल में रखना है. फिर तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकली एक्टिव होना. जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं खवातीन होती उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है. तो ये तीन अहम चीज़ें जो कि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. मोटापा,
खाना पीना और वॉक ना या एक्सरसाइज ना करना। फिर इसके बाद एक अहम चीज़ जो कि मिसिंग होती है, जो कि प्रोटेक्टिव है, जिस पे हम अमल कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिकल बातें आपसे करता हूँ, वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग माएँ जो हैं बच्चों को दूध फीड करेंगी, तो ये अर्ली डिटेक्शन का जब हम बात करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन में हमने दो लोग आते हैं, एक वो जिनकी फैमिली में किसी को हुआ हो, एक वो लोग जिनकी फैमिली में नहीं है। तो जिनकी फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा हो तो उनका ये है कि जिसको जिस एज में ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है उससे 5 साल पहले अगर किसी की बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 40 की उम्र में, तो उन्होंने 35 की उम्र में वो डॉक्टर से के पास जाके अपना मुआयना करवाना। फिर उसके बाद जैसे मैडम ने बताया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। फिर कुछ फैमिलीज हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क है, उनमें फिर जीन्स वगैरह के इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। फिर छाती के कैंसर की शुरू की इलामात हैं, शुरू की इलामात बहुत अहम होती हैं। इनको अर्ली डिटेक्ट कर लेने से दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो बड़ा फायदा ये होता है कि छाती बच सकती है, वो कैंसर नहीं, वो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा कि जैसे पूरी छाती उतार दी जाए। दूसरी एक अहम बात ये है कि अगर बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो सिर्फ ऑपरेशन भी काफ़ी हो सकता है, कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो सकता होता है। फिर उसके बाद हम अगर स्टेजेस तो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, तो स्टेज 1, 3 और 4 हैं, इनके आउटकम्स में डिफरेंस है। मींस के अगर स्टेज 1 में डायग्नोसिस होता है तो स्टेज 1 के आउटकम्स उतने ही तकरीबन अच्छे हैं कि जितने डेंगू के हैं, मलेरिया के हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट वी कैन से कि स्टेज 1 में इट इज अ क्यूरेबल डिजीज, स्टेज 2 इज आल्सो ऑलमोस्ट क्यूरेबल, स्टेज 3 थोड़ा प्लस माइनस होता है, फिर स्टेज 4 इज नॉट क्यूरेबल, स्टेज 4 लेकिन डिलेड आती है। कि ये जो प्रॉब्लम है ये खवातीन का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। खवातीन जो हैं, एक खातून एक माँ है, एक बेटी है, ठीक है, तो ये तमाम सोसाइटी को इफेक्ट करता है, ये एक फैमिली को हिट करता है, ये एक इंडिविजुअल खातून को हिट नहीं करता, पूरी फैमिली की रूटीन हिट होती है। तो अवेयरनेस सिर्फ खवातीन में जरूरत नहीं है, मर्दों में भी उतनी ही अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता किसी को ये फेस करना पड़े, तो ये सब बिग प्रॉब्लम है। सीन जवान लड़कों को माओ के लिए रोते हुए देखा है, ये सबका मसला है, ये सोसाइटी का कंप्लीट का मसला है। और एक और बात ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे नहीं है कि किसी ने कुछ गलत किया तो ये उसके सामने उसकी चीज़ आ रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बीमारी है जो आज़माइश के तौर पे आती है और इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो मैं इस मेरे ख्याल से यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बाकी जो अहम चीज़ें थी वो डॉक्टर केरम ने कवर कर दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसकी छाती पे लगी दर्द भी बहुत ज्यादा है, गिल्टी भी महसूस हो रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, आप आइए सर। अच्छा देखिए, मैंने इनकी चाची का बहुत तसल्ली से मायने किए और मायने से मुझे इनकी गिल्टी कुछ शक वाली लग रही है, ठीक है। क्या मतलब डॉक्टर साहिबा? मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कैंसर हो सकता है, कैंसर की गिल्टी हो सकती है। कैंसर? लेकिन हम पहले कुछ टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, टेस्ट के बाद ही हमें तसल्ली होगी, कंफर्म पता चलेगा। लेकिन दिखने पे ये लग रहा है कि शक है, शायद हो सकता है कि कैंसर। कोई इतना मसला नहीं है, सारे टेस्ट अस्पताल के अंदर से हो जाते हैं और फ्री होते हैं। एक में इनका बड़ा एक्सरे कराऊंगी छाती वाला, ठीक है, और एक सुई वाला टेस्ट हम करवाएंगे। सुई वाला टेस्ट? ना डॉक्टर साहिबा, सुई वाला टेस्ट नहीं कराना, मेरी तो गिल्टी खराब हो जाएगी, फैल जाएगी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने सुई से सिर्फ आपकी उस गिल्टी का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको रिपोर्ट में भिजवा देना है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपकी गिल्टी कैंसर वाली थी या कोई नॉर्मल गिल्टी थी आपकी। तो मैडम जी ये कैंसर तो मुझे भी लग जाएगा इससे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। छाती का कैंसर इस तरह की बीमारी नहीं है कि वो आपके साथ रहने वाले किसी और बंदे को लग सके, ना ही कोई इसका टेस्ट इस तरह की कि वो इसको फैला सके किसी और में, ठीक है। तो मैं आपको फिर टेस्ट लिख के देती हूँ। तो डॉक्टर साहब कोई दवाई ऐसी नहीं है टीका लगाओ ये जल के खत्म हो जाए? देखो बाज गिल्टियाँ इस तरह की होती हैं जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती है, लेकिन वो गिल्टी इस तरह की होती है कि कोई इन्फेक्शन हो गया
आपको पीप पड़ी हुई है जिसको हम एब्सेस भी कहते हैं, ठीक है। वो उस तरह की कुछ चीजें होती है जिनमें हम दवाइयाँ देते हैं और हमें उम्मीद होती है कि वो दवाई से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो कैंसर निकले तो फिर तो ऑपरेशन करना पड़ता है या बाकी इलाज कराने पड़ते हैं उसके लिए। ऑपरेशन में क्या होगा डॉक्टर साहब? देखो ऑपरेशन का ये है कि अभी जिस स्टेज पे आप आ गई हैं इसमें हम सिर्फ जो आपकी गिल्टी वाला हिस्सा है उसको निकालेंगे, ठीक है। आपकी बाकी जो सारी छाती है वो बच जाएगी, लेकिन बाजू का खुदा हंसता हमारे पास अगली स्टेजेस के पेशेंट्स पे आते हैं जिसमें कैंसर छाती में इतना फैला होता है कि फिर हम छाती को बचा नहीं सकते, तो उस सूरत में तो पूरी निकालनी पड़ती है, लेकिन आपकी जो है मुझे उम्मीद है कि अभी इस स्टेज पे पूरी नहीं निकालनी पड़ेगी। जब ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा तो मर्द इतना सख्त है वो तो मुझे छोड़ देगा, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, आप मुझे दवाइयाँ लिख दें बस। आपने कहा इनके शोहर को या ठीक हो जाएगा दर्द वाली। अच्छा ठीक है मैं आपको दवाई भी लिख के देती हूँ, लेकिन आपने अगली दफा इनके शोहर को ये घर का जो भी पड़ा होता है वो साथ में क्या ना, मैं खुद उनसे बात करूँगी वो उनको समझाऊंगी। मैडम जी दवाई तो लिख दें। अच्छा लेकिन देखिए मैं आपको दवाई तो दे रही हूँ, लेकिन वो दवाई सिर्फ उस दर्द के लिए जो आपको चोट लगने से हो रहा है, ठीक है। गिल्टी को वो दवाई ठीक नहीं करेगी, सही है। उसके लिए आपने टेस्ट करवाने हैं और टेस्टों की रिपोर्टें जल्द से जल्द मेरे पास वापस लेके आनी है। चलिए ठीक है ठीक है हाँ, मैं दवाई भी लिख के दे रही हूँ और टेस्ट भी लिख के दे रही हूँ। दवाई आपने खानी है और टेस्ट करवा के जितनी जल्दी हो सकेगा वापस मेरे पास आना, ठीक है। चलिए बस आप ये टेस्ट करवा दें और इसके अंदर ही दवाइयाँ भी खाएं और टेस्ट की रिपोर्ट्स के साथ वापस मेरे पास आए। हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन, तो परेशान है। तुझे याद है अपनी साइदा की परजाई नहीं थी, उसने बाबे से दम कराए, बिल्कुल गिल्टी गायब, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। मुझे मैं उस बाबे का पता करना उसके पास रखे, इधर मैंने नहीं आना चाहिए। इतने महंगे टेस्ट हम क्यों कराए? डॉक्टर साहब मैंने 2-3 दिन पहले अपनी छाती में एक गिल्टी देखी, महसूस हुई मुझे, और उसके बाद मुझे बहुत डर लगा कि कहीं ये कैंसर वाली चीज तो नहीं है कोई। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जैसे ही फील किया कि कोई गिल्टी या कोई मसला है आप मुझे फौरन चेक कराने के लिए आ गए। एक बात मैं मैंने आपकी क्लियर कर दूं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी सभी के लिए कि जरूरी नहीं है कि हर गिल्टी कैंसर वाली हो, ठीक है। 10 में से कोई एक गिल्टी ऐसी निकलती है जो कैंसर वाली होती है, 9 गिल्टियों में कोई और वजह होती है गिल्टी बन जाने की, लेकिन मैं आपका मुआयना कर लेती हूँ तसल्ली से, आप तसल्ली करेंगे, अगर हमें कुछ लगा मसला तो हम मजीद उसको देखेंगे। जी डॉक्टर साहब देखिएगा बड़ी परेशानी आजकल, आप फोन भी किसी को करो तो उसमें यही बता रहे होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर। वो बस लोगों की अवेयरनेस है ना, देखें आपने मुझे सुन के शायद आप इधर आ गए आज। डॉक्टर साहब क्या मुआयने में क्या आपको मिला? अच्छा मैंने उनकी गिल्टी का जो है ना बहुत डिटेल से मुआयना किया है, लेकिन एग्जामिन करने के मुझे उनकी गिल्टी थोड़ी शक वाली लग रही है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम पहले टेस्ट वगैरह कराएंगे सारे, अपनी तसल्ली कर लेंगे कि क्या है। क्या टेस्ट कराने डॉक्टर साहब? एक तो मैं इनका अल्ट्रासाउंड कराऊंगी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा नहीं तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, और फिर उसके बाद हो सकते हैं कि हम इनका एक जो सुई वाला टेस्ट करें जिसको ट्रूपिड बायोप्सी कहते हैं हम लोग, ठीक। उसमें बस हमने ये करना है कि आपके जो गिल्टी आपको फील हुई है उसको बस छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे उस सुई की मदद से और उस जगह को सुन देंगे और उसके बाद उसको लेबोरेटरी में भिजवा सकेंगे, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये गिल्टी वाकई कैंसर वाली है या कोई नॉर्मल सी गिल्टी है, खतरे वाली नहीं है। जी डॉक्टर साहब हम सारे टेस्ट जो भी आप लिख के देंगे वो हम जल्दी करवाएंगे, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं चाहते। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत टाइम से मेरे पास आ गए और कुछ तावन भी दिखा रहे, ठीक है। मैं आपको बस ये टेस्ट लिख के देती हूँ, आप जल्द से जल्दी करवाएं और बस फिर मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। अल्लाह ये रोगी बाबा के दरबार में आइए तो बाहर की चल अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी ये मेरी बहन है, इसका इलाज करा है। बाबा जी को बताओ क्या मसला है। बाबा जी वो ना छाती में गिल्टी हो गई है, तो डॉक्टर ने तो बहुत ऑपरेशन पता नहीं सुई वाले टेस्ट लिख दिए हैं मेरे पास, सिर्फ आप आपकी उम्मीद है बाबा जी, प्लीज कुछ कर दें। बाबा सब जानता है। मुझे अभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई टेस्ट नहीं कराना, कोई
कोई दवाई नहीं लेनी, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बाबा तेरा इलाज करेगा। ठीक है बाबा। तेरी छाती की गिल्टी फट के बाहर आएगी और बीमारी जड़ से खत्म होगी। बाबा जी आप इलाज कर दो, जो आप कहोगे मैं वो करूँगी। ये ले बाबा। इंसान को अल्लाह ने मट्टी से तख्लीक किया तो तेरी बीमारी का इलाज का तोड़ भी इस मट्टी में ही है। अपने हर पूरे चांद की तारीख को 11 बार दम कराने आना है और हर बार एक काले बकरे की कुर्बानी देना है। ठीक है बाबा जी। बाबा जी की फीस अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाबा जी फीस नहीं लेते, अपनी मर्जी से जो देना है नजराना करते। एक सोचान के दी थी बाबा ने उतार दे तेरा बड़ा तो वैसे भी तुझे छोड़। शुक्रिया बाबा जी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। ये देखिए, ठीक है? क्या हुआ डॉक्टर साहबा? ये रिपोर्टें तो मैंने सारी देख ली डिटेल से, लेकिन एक्चुअली मेरे पास आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। आपकी जो गिल्टी थी वो उसमें कैंसर या है। कैंसर डॉक्टर साहबा? नहीं डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती, कैंसर कैसे हो गया इसे? देखिए मैंने जब आपका मॉडल किया था मैंने तब भी आपको बताया था कि पॉइंट भी नहीं लग रहा है कि वो शक वाली गिल्टी है, इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो जो आपकी इसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी यही है कि गिल्टी जो है वो कैंसर वाली है। और फिर जो आपकी बायोप्सी होके आई है उसमें तो हमें 100% कंफर्मेशन हो जाती है, तो कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहबा इसके खानदान में इसकी माँ को इसकी बहन को तो किसी को कैंसर का मसला नहीं है, इसे कैसे कैंसर हो गया है? हाँ नॉर्मली ऐसा ही सोचा जाता है कि कैंसर फैमिली हिस्ट्री वगैरह नहीं होता, लेकिन 70 to 80% केसेस ऐसे ही आते हैं हमारे पास जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, मतलब फैमिली में किसी और मेंबर को ये कैंसर पहले कभी नहीं हुआ होता, वो पेशेंट पहली दफा ही हमारे पास आता है। ऐसा सिर्फ 20 से 30% लोगों में होता है कि उनकी फैमिली में भी किसी को हुआ हो और उसको भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली में नहीं किसी को था तो आपको भी नहीं हो सकता। इट इज अनफॉर्चुनेट बट लेकिन डॉक्टर साहब कैंसर तो हमेशा बूढ़ी औरतों में होता है ना, तो मेरी तो एज ही अभी इतनी सी है, तो इसमें आप कैसे मतलब कैंसर कैसे हो गया? दिस इज ट्रू कि ये बड़ी उम्र की औरतों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आजकल ओपनली हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। इवन मैंने 18 से 20 साल की लड़कियां भी देखी हैं जिनमें कैंसर हो जाता है। तो ये बात भी नहीं है कि छोटी उम्र में हो ही नहीं सकता, हो रहा है आजकल, बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन डॉक्टर साहब कैंसर तो बिल्कुल लाइलाज है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। देखिए कैंसर लाइलाज तब होता है जब बहुत अगली स्टेज में चला जाता है, स्पेशली जो ये छाती का कैंसर है। अगर हम इसको बिल्कुल अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं, इसकी तशखीस करते हैं और इसका मुकम्मल इलाज करवाते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो मरीज हमारे बिल्कुल जो है नॉर्मल जिंदगी गुजार लेते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप बहुत लेट स्टेज पे आएंगे तो फिर तो लाइलाज है, लेकिन जिस स्टेज पे आपका भी है उस पे इंशाल्लाह ये आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब तो इसका इलाज क्या करेंगे, हमें बताएं ना क्या कर सकते हैं? अच्छा अभी फिलहाल तो हमने कुछ फर्दर टेस्ट करवाने होंगे इनके, और फिर मैं आपको कैंसर डॉक्टर के पास भेजूंगी जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, उनसे भी मशवरा करेंगे और फिर उसके बाद जो है जो कैंसर है इससे हमें उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर ऑपरेशन के बाद भी जब तक हमें वापस आपको भेजना पड़ता है डॉक्टर के भेजते हैं आप कैंसर वाले डॉक्टर के पास, तो वो मैं साथ सारी चीजें आपको गाइड करते होंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमारी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है, तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट और ये सब इसके बाद हम कैसे नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे? मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ रही हूँ, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान इस मामले में, ये वाकई परेशानी वाली बात है, लेकिन आपने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी, ठीक है? आप बहुत अभी अर्ली स्टेज पे हमारे पास आ गए, अभी हमारे पास वक्त है कि हम आपका इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज करेंगे और सिर्फ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप जाहिर सी बात है इफेक्ट होगी, लेकिन जब वो चीज़ें ट्रीटमेंट वाली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप इंशाल्लाह बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है डॉक्टर साहबा, जो भी है हम सारा इलाज कराएंगे, वक्त कराएंगे ताकि इसका हल निकल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
ठीक है, फिर मैं आपको फर्दर चीजें लिख के देती हूँ, फिर आपके साथ साथ जी डॉक्टर साहब आपने हमें हर स्टेज पे गाइड करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इलाज हो। इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है मैम। मैडम रशीदा को पहले बुलाई थी ना आपके पास। कब लेके गए? अपना कागज दिखाओ। कागज है मैडम मेरे पास। आप आराम से बैठो, ठीक है, रिलैक्स। आप तो 2 साल पहले मेरे पास आई थी और मैंने बताया था कि इनकी छाती में कोई गिल्टी है जो कि लग रहा है कि कैंसर है, तो आप उसके बाद आई थी मेरे पास। हाँ? आपने कोई इलाज कराया, कोई टेस्ट नहीं के दिए थे मैंने आपको कराने के लिए, आप उसके बाद 2 साल नहीं आए मेरे पास। डॉक्टर साहब आप कुछ कर दें, बस आप इलाज कर दें, कोई जो आपको इलाज कराया है मैडम, इलाज कराया है अपने पास डॉक्टर है, उससे इलाज कराया है इसका। कोई अस्पताल आपके पास? अभी तो पता नहीं इसको क्या हो गया, इसके पेट फूल गए, हर वक्त खांसती रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है, बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर साहब आप कहाँ से इलाज कराएंगे? अस्पताल आपके घर के पास है? कौन से डॉक्टर से कराया आपने इसका इलाज? मैडम जी हमारे एक बाबा है, बहुत अच्छे बाबा हैं, सबको आराम आता है, सब बीमार शिफा पाते हैं उनसे मैडम। उससे इसकी सारी जितनी सारी बीमारी बाहर आ गई है, बस ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर साहब, इतनी मदद करें। देखिए, मैंने आपको 2 साल पहले बहुत क्लियरली बताया था कि मुझे इनकी गिल्टी कैंसर है और आपने बात को सीरियस नहीं लिया। आप काम कराने के लिए चली गई। डॉक्टर साहब आप तो कहीं कोई टीका होगा, टीका लगा दे, कोई दवाई लगा दे, कुछ क्या कर सकते हो? आपको मेरे पास भी टेस्ट लिखे दिए था, आपने कोई टेस्ट नहीं डॉक्टर कराया? साहब मैंने टेस्ट करा लिए, इसके टेस्ट भी करा लिए। ये अभी करा? जी मैडम। क्या है? गलती हो गई मैडम जी, गलती हो गई, अपनी बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, मैं 2 साल पहले जब आप दोनों टेस्ट लिखे दिए थे तब ये शुरू के स्टेजेस में था। तो जब आप सब कुछ करा लेते तो आज ये बिल्कुल ठीक होती, नॉर्मल जिंदगी गुजार रही होती। तो मैडम इसको कुछ मीठा भी नहीं खिलाया जिसका कैंसर फैल ना जाए, फैल ना जाए। पता नहीं आपको किसने बताया कि छाती का कैंसर मीठा खाने से कोई है ऐसा। कुछ तो कर दे, कुछ तो कर। देखिए, अब तो अफसोस की बात है, क्या कर सकते हो मुझे बताएं। अब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो डॉक्टर? डॉक्टर साहब पहचाना आपने? हाँ, क्यों नहीं पहचाना? अपने अच्छे मरीजों को तो हम हमेशा याद रखते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके इलाज और आपकी तशखीस की वजह से मेरी बीवी का बर्वक्त इलाज हो सका, आज हमारी प्यारी बेटी भी है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक करना चाहते हैं कि आप ही की वजह से बर्वक्त इलाज हुआ है और तशखीस हुई है और हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बेटी के लिए बहुत बहुत मुबारक। और वैसे शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज होता है। ये आपको भी इस चीज़ का बहुत क्रेडिट जाता है कि आप टाइम पे हमें चेक कराने के लिए आ गए, जो हमने टेस्ट लिखे दिए, जो ट्रीटमेंट आपको बताया आपने वो सब फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो आप बस यही रिक्वेस्ट है कि आपके जानने वालों से आपकी सराउंडिंग में अगर आपको कोई इस तरह का मरीज नजर आता है तो आप उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं, उनके दिल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर करें और उन्हें बताएं कि वो आगे हमें शुरू के स्टेजेस में दिखाएं ताकि हम उनका प्रॉपर इलाज कर सकें। जी डॉक्टर साहबा, हमने तो बल्कि मैंने तो मेरे सर्कल में जितने भी लोग थे मैंने उन सबको बताया है और उन सबको सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी आगाही दी है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप सब लोग तो माशाल्लाह आप समझते ही हो, लेकिन आपकी सराउंडिंग में भी आप इस तरह के केस देखते तो उन्हें प्रॉपर गाइड करें,
जो भी खदशात उनकी दिल में हैं उनको खत्म करें और उन्हें ये कि बस आगे हमें दिखाएं और जो ट्रीटमेंट उनको बताए जाते हैं उनसे डरे नहीं बिल्कुल, उनको फॉलो करें ताकि इनकी तरह वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी में जाए। ऑब्वियसली ये जो ब्रेस्ट कैंसर का इशू है हमारी फीमेल्स के वाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। 50% पॉपुलेशन है हमारी फीमेल की और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अर्ली रिकग्निशन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अर्ली रिकग्निशन के लिए जितनी अवेयरनेस अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा जो है ना जल्दी इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हर घर में जो ख़वातीन होती है ना वो किसी ना किसी सरप्रस्त के साथ होती है, चाहे वो वालिद हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो। और इन लोगों को भी साथ साथ रहना अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक वालिद जो है अवेयर है ना इस चीज़ से तो उसकी 3 या 4 बेटियां जो हैं वो सारी की सारी जो है वो इसमें कवर होती। तो इस पर भी थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आई विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी हु इज देयर हु हैज पार्टिसिपेटेड देयर और उनके लिए मैं अपनी तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much everybody. बहुत शॉर्ट नोटिस के साथ लेकिन सिर्फ एक मैं स्पेशली अपने एडमिनिस्ट्रेशन सर डॉक्टर शहजाद मीर और हमारे अमेजिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तसव्वुर उनकी अगर हमें कुछ भी होता है कि ऑलवेज देयर फॉर अस और हमारे लिए वो हर तरह की एफर्ट करते हैं। स्पेशली मेरे नर्सिंग डिपार्टमेंट और हमारी डॉक्टर्स हर तरह जो सारी फैकल्टी थैंक यू वेरी मच। हुमैरा है जो कि वेटर्स की तरफ से है जो कि आप उनकी जो दवाई है वो मस्टेरिया के लिए बहुत कॉमनली यूज करते हैं और बहुत ये हुमैरा मैं पर्सनल थैंक यू